Hey everyone, how are you all? So welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So today the topic that I'm going to cover is going to be an essay writing, which I'm going to tell you today. So basically, if you're preparing for CAPF Assistant Commandant paper, then you are at the right place. Okay. So the thing that I'm going to cover today that we know the paper two syllabus of that. Like paper two में क्या क्या आता है आपके? There are so many things that consist of paper two. पहला तो grammar portion आता है. ठीक है, ग्रामर वाला अभी नेग्लेक्ट करते हैं. दैट विल बी फॉर लास्ट like 20 to 25 days. First, see what is the format of essay writing. Okay, how you can approach an essay. Okay, so यहाँ पर आपका पता है आपके पेपर में वैसे आता है essay, argument, रिपोर्ट आता है, प्लस ही आता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. इन सब का फॉर्मेट मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी. यू विल have to just check it out once, playlist or something. You can watch recent videos of mine and you will find that. Okay, so without any further ado, I would like to start the video. But before that, I have to tell you one thing that guys, जब यहाँ पे मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगी, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, फर्स्ट जस्ट रीड द टॉपिक. जैसे यहाँ टॉपिक मैंने लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ बून और अ बेन. तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो ऑन गूगल, ऑन चैट जीपीटी, वेर एवर यू वांट टू. वहाँ पर जाके पहले आप करो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा खासा. ठीक है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, एंड हाउ you have to approach the answer, what things you have to inculcate in an essay writing, and what things you doesn't have to write here. Okay, so just go and see there and then come at this particular video. You will find a lot of value here. Okay, so okay, so without any further delay, I would like to start the video. But the fact is, guys, please like, subscribe and share my channel. Okay, thank you so much if you're liking it. Okay, so let's get started then. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है. आपको सबसे पहले जब भी आप किसी ऐसे को अप्रोच करते हो तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो विद अ कोट, विद अ गुड कोट. तो आप जाओ गूगल पे सर्च करो, जो भी आपको बढ़िया से कोट लगता है आप लाओ, यहाँ पर लिखो. ठीक है, उसके नीचे आप ये भी लिख दो हु कोटेड दैट पर्टिकुलर कोट. ओके, सो यहाँ पर फीफी ली, ही इज़ द को डायरेक्टर ऑफ स्टैनफोर्ड AI इंस्टीट्यूट. मुझे इनका बेटर लगा था बिकॉज दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. दैट्स वाई. सो AI इज़ नीदर गुड नॉर evil. It's a tool. It's technology for people, by people and with people. For people, by people and with people in mind. Okay, so this was the quote here. So just write one good quote before writing any essay. You can take a different quote and you can take a quote from wherever you want. Okay, you can even like a quote or different quote that was from Oren Adjoini, CEO of Allen Institute for AI, that I can remember right now. That artificial intelligence is a tool. Its value lies not in what people knows but how people use it. Okay, so that was the quote of him. So मुझे वो भी better लगा था, but ये वाला I thought कि this is like more clear and it's in easy sentences. That's why I use it. Okay, then what you have to do now, you just have to prepare a proper body. Okay, तो आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर आप जितना लिखोगे, जितना भी आपकी अप्रॉक्स जो भी आप लिखोगे 200 वर्ड्स में आपकी बॉडी होनी चाहिए. और बॉडी में आपको सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करानी होंगी. जैसे कि यू हैव वन थिंग दैट इज़ what it called as wait, you have pestle. Pestle is nothing but it's a way to write any answer if you don't have any idea about that particular topic. Suppose that artificial intelligence में आपको एक दो डेटा फैक्ट्स के अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं है, आपको कैसे अप्रोच करना आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेस्टल टेक्निक आप यूज़ करोगे. यहाँ पे क्या होता है कि P से आपका पॉलिटिकल होता है. ठीक है, E से आपका इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, S से सोशल हो जाएगा, T से टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा, E से अगैन इन्वायरमेंटल हो जाएगा, L से लीगल हो जाएगा. तो ये सारे आपके एक अप्रोचेस हो जाएंगे, एक बॉडी हो जाएगी आपकी, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को यहाँ पर इनकलकेट कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले आप जब आपने इतना लिख लिया तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको AI के कुछ के बारे में कुछ लिख देना है. उसे ऐसे का फॉर्मेट अच्छा लगता है. जैसे आपने लिख दिया कि AI लाइक it serves or it is an emerging technology. It's a revolutionizing agent of the country, of any like of the world. You can use like that, and it's a technological invention, innovation at an unprecedented pace. You can write like that. Okay, so let me write it and then I will again start the video. Okay, just look here. This will be your intro part. Okay, सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप लिखो कुछ भी लिखो, एनीथिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशनाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, लाइक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन में हेल्प करता है. अनप्रेसिडेंटेड स्पेस की जो है एवोल्यूशन हो रहा है. मतलब ऐसे आप कुछ भी लिख दो, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड. ठीक है, ऐसा लिखो कि आपका जो पढ़ने में इनिशियली जो एक पढ़ने का लाइक पेस होता है इंटरव्यूअर्स का,
लाइक जो भी कॉपी चेक करते हैं, जो भी रहते हैं, सॉरी इंटरव्यूज़ मैंने बोला, तो जो भी चेक करते हैं उनका एक लाइक इंटरेस्ट बने आपके ऐसे पे, ठीक है। कुछ भी लिखो, डुअल एजेड नेचर है उनका, ठीक है। अभी क्या है, इसमें मेरी राइटिंग अच्छी बैठ नहीं रही है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक ऑन it is not on the paper, okay, so that's why. So just I'm going to tell you all of the format here. So यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है. Now you prepared a good, sorry, what is happening here? Okay, so you prepared a good intro, okay, so you prepared a overall good intro, and now what you have to do is you have to prepare a good body. गुड बॉडी आपको कहाँ तक प्रिपेयर करनी है, जितना आपके अप्रॉक्स 200 वर्ड्स में आपको केवल गुड बॉडीज़ ही लिखनी है. 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं इंट्रो में, 50 वर्ड्स लिखने हैं कंक्लूजन में, और बॉडी में आपको अप्रॉक्स 200 वर्ड्स डालने हैं. तो कैसे डाल सकते हो आप? बेसिकली आप क्या करो, पेस्टल वाली टेक्निक है ना आपकी, वहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले पॉलिटिकल ले लो, ठीक है. अगर आप लोगे यहाँ पर पॉलिटिकल, तो यू कैन राइट लाइक फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है. आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. उसके बाद जो भी पॉलिटिकल डेटा आपके दिमाग में है उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दो, इनकलकेट कर दो. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तो यहाँ पर जब आप लिखोगे फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इतना लिखने के बाद आप ऐसे बोल सकते हो लाइक इट इज़ अ टूल विच इज़ अ थ्रेट as well as it is a like a boon for us as well. So you can write, for example, Delhi air quality and recently, you know, like cyclone Remal was measured using AI tools. लाइक AI जो हमारे टूल्स होते हैं उनको मेज़र करके हमने ये सब चीज़ें मेज़र की थी. दिल्ली का जो मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम AI में यूज़ कर रहे हैं. तो यू कैन राइट लाइक दैट. यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द थिंग्स लाइक अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है. जनरल इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था कि डीप फेक्स की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है. So there were like a lot of deep fakes videos were circulating on political leaders and political like जो भी उनके stances थे उस पर. So that is why that was deteriorating the political or election campaign that particular time. So that's why you can incorporate that thing also कि 2024 में जनरल इलेक्शन में हमने देखा कि AI का क्या इम्पैक्ट हो सकता है. ओके, सो दैट वाज द थिंग. ऐसे आप सोशलॉजिक मतलब सोशली भी लिख सकते हो, सोशली क्या इम्पैक्ट हुआ है. उसके बाद आप ऐसे पॉलिटिकली लिखा, आपने सोशली लिखा, फिर एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ आपको लिखते हैं उसके थ्रू वो हो सकता है, वो सब लिख दो. तो एवरीथिंग जस्ट इनकॉर्पोरेट इन द बॉडी, एंड देन एट द लास्ट कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक दैट. लेट मी सबसे पहले तो आप बीच में ऐसे कुछ लिख सकते हो कि जैसे AI इज़ इक्वल टू पावर इनटू इंटेंशन प्लस माइनस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. तो मतलब ऐसे लिख सकते हो कि AI इज़ पावर, बट पावर में अगर आप इंटेंशन मिला देते हो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी होगा कॉन्सिक्वेंसेस उसके थ्रू, एंड नेगेटिव भी हो सकता है. तो ऐसे आप लिख सकते हो. या आप लिख सकते हो AI इज़ इक्वल टू पावर प्लस पर्पस माइनस रिस्क, ठीक है. ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. ये सब आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, AI आपका रिप्रेजेंट करता है पावर, ठीक है. AI इज़ पावरफुल बट विदाउट पर्पस एंड विदाउट रिस्क. अगर आप पर्पस एंड रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो इट वुड बी अ वेरी रिस्की थिंग फॉर अस. तो ऐसे आप लिख सकते हो एट द कंक्लूजन पार्ट ऑल्सो, ठीक है. ऐसे लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है. एंड यू कैन राइट लाइक दैट कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इनहेरेंटली नॉट अ बून or bane, but a tool shaped by human intention, their perception, ठीक है. ऐसे लिख सकते हो. तो एट द लास्ट यू जस्ट हैव टू राइट अ वे फॉरवर्ड लाइक कंक्लूजन कि we should strike a good balance between पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ AI. तो ऐसे आप लिख सकते हो, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जो भी चीज़ें आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. तो जस्ट आई वॉज टेलिंग यू ऑल ऑफ द फॉर्मेट हाउ यू हैव टू अप्रोच आंसर. अभी मैं यहाँ पर लिखने बैठती तो इट वुड हैव बीन टेकन अ लॉन्ग टाइम, एंड मेरे पास टाइम आई एम लैकिंग अ शॉर्ट ऑफ टाइम. आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स एल्स, सो दैट्स वाई. बट आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन अदर टॉपिक्स, ठीक है. मैं उसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बता दूँगी, हाउ यू कैन अप्रोच आंसर, हाउ यू कैन ब्रेन स्टॉर्म योर क्वेश्चन. सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है. एंड okay, we'll meet again in the next video. Bye bye.